Hello friends, welcome to my channel Easy Biology, and we were studying the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, class plus 2. Let's continue. First of all, to proceed further, let's recall कि ਅਸੀਂ previous class ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. We were doing in the last class the structure of ovule. Structure of ovule we have already done. After that we have completely understand the structure, its diagram thoroughly. After that we were doing the types of ovules. I have given you the home assignment कि तुसी ovules दे different जड़ियाँ types हैं उदी diagrams खुद try करोगे draw करनी. That's why कि तुहानू जड़ियाँ types ने इदियाँ ovules दियाँ there are 6 types in your syllabus. तुहानू 6 दियाँ 6 types जड़ियाँ हो easily समझ आ जान with diagrams. The first one was आपां थोड़ा जा back चलते हैं. Orthotropous. I already told you if the ovule is erect, अगर वो erect position च like this, तुसी मेरे hand दी position नू समझना है. If the ovule is like this, then this is orthotropous ovule. If it is anatropous, then it means it is inverted. Inverted, you understand? If it is like this, only focus on my hand position. अगर इस तरह दी position है ovule दी, then it will be called as anatropous or inverted ovule. Second is hemitropous. Hemi means half. If it is half inverted, inverted तो है but half inverted है, like इस तरह तो anatropous. अगर इस suppose इस तरह इस angle पे है, then it will be called as hemitropous. Fourth one is campylotropous. If the ovule is covered, if its body is covered with some covering, then it will be called as campylo. C for covered, C for campylotropous. Next is amphitropous. Amphitropous, if the ovule body plus embryo sac both are covered, then it will be called as amphitropous. And the last one is cercinotropous. Cercinotropous की है जो असी फ्यूनिकुलस वर्ड एक टर्म की सी जो असी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ी सी. जिहड़ा फ्यूनिकुलस है दैट इज़ कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल. If इन्हें coiling की हुई है surrounding the ovule, then it be called as cercinotropous. There are 6 types of ovules. सारियां दी diagrams है. I have given you the home assignment कि तुसी घर तो सब दी diagrams खुद try करोगे और जिस तरह तुसी particular type दी diagram draw करोगे तो तुहानू ओदी जिहड़ी position है वो clarify हो जाएगी, easily understand हो जाएगी. Clear है जी? Next चलते हैं आज आपां अपने आज दे टॉपिक ते, that is megasporogenesis. We have done till now types of ovules, structure of ovules, microsporogenesis. Now we are doing megasporogenesis. Megasporogenesis. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ here is the difference of only mega and micro.
if the term is micro, then that means we are talking about pollen grains, and if there is the term mega, that means we are talking about female gametophyte. Female gametophyte or embryo sac. फीमेल की गल कर रहे हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर की। क्लीयर है? लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नू रिकॉल करो, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। हियर इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज दिस प्रोसेस? इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ, it is the formation of haploid megaspores. MMC भी बोल देने हैं, मेगास्पोर मदर सेल। MMC दी फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल्स। न्यूसेलस दे अंडर, इनसाइड द न्यूसेलस, मैं पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी कि ये जड़ा मैगास्पोरोजेनेसिस है, लाइक आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत अच्छी तरह एलैबोरेट करके समझिया सी। सिमिलरली वी विल डू द मैगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस टू। न्यूसेलस दे अंदर जड़ा इको ही फंक्शनल, ओनली वन फंक्शनल MMC मैगास्पोर मदर सेल हुंदा है, जिहड़ा कि रेस्ट ऑफ दी ऑल नालों डिफरेंशिएट किदां करदा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। किस तरह सानू पता किदां चलदा है कि दिस इज़ द फंक्शनल मैगास्पोर मदर सेल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। इहदा साइज एनलार्ज हुंदा है, इहदा साइटोप्लाज्म डेंस हुंदा है इस पर्टिकुलर सेल दा, एंड प्रोमीनेंट न्यूक्लियस हुंदा है। क्लीयर है जी? प्रोमीनेंट न्यूक्लियस हुंदा है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, हैप्लॉइड मीन टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर्स जिहड़े बनते हैं, सॉरी मेगास्पोर्स, फ्रॉम विच only one is functional and rest 3 ਜਿਹੜੇ हैं ਉਹ ਫਰਦਰ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਏ। टिल नाउ असी सिर्फ मैगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, वट इज़ मैगास्पोरोजेनेसिस, उन्होंने ही एलैबोरेट किया है कि मैगास्पोरोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मैगास्पोर मदर सेल। इफ देयर इज़ द टर्म MMC, दैट मीन्स मैगास्पोर मदर सेल। दिस विल बी ओनली, देयर विल बी ओनली वन फंक्शनल मैगास्पोर, रेस्ट विल बी डिजेनरेटेड और दे हैव सम अदर फंक्शंस। नाउ लेट्स एक्सप्लेन the full process of megasporogenesis. In your books there is first of all given the difference between microsporogenesis and megasporogenesis, लेकिन मैं की कर रही हाँ कि आप पहले megasporogenesis process नू समझ लेंदे हाँ। after that we will be able to differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis very easily। तुसी अपने आप भी difference जिहड़ा वो क्रिएट कर लोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिल दैन तुसी सिर्फ इन्ना याद रखना है कि आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। सिमिलरली जदों मैगास्पोरोजेनेसिस हो जाती है एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो सैक और फीमेल
gametophyte is formed। क्लीयर है जी। ये असी साइड बाय साइड वन डिफरेंस भी नाल दी नाल ही कर लिया। एक्चुअली असी जिहड़ा पर्टिकुलर डिफरेंस है तुहाडी बुक दे विच दिते होए ਉਹ ਅਸੀਂ फर्दर करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मैगास्पोरोजेनेसिस। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि वन फंक्शनल मैगास्पोर बनता है, डिवेलप करता है इनसाइड द फीमेल गैमीटोफाइट। जिहड़ा फीमेल गैमीटोफाइट है उहदे अंदर ओनली वन फंक्शनल मैगास्पोर। तुसी याद करो, रिकॉल करो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दे विच उहदे विच जिन्ने भी 3 सैल्स बने सी ऑल द 3 वर फंक्शनल, बट हेयर ओनली वन फंक्शनल मैगास्पोर डिवेलप करता है। जिहड़ा फंक्शनल मैगास्पोर है इहदा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है इंटू 2 डिवाइड करता है। मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। फिर जो 2 न्यूक्लियाई हैं तुसी इहनूं इस तरह स्टैप बाय स्टैप लिख लो। दोनों न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाते हैं टू द 2 पोल्स और टुवार्ड्स द 2 एंड्स। अगेन डिवाइड करते हैं, 2 तो 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अगेन डिविजन 4 तो 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जो 8 न्यूक्लियाई बन गए ਜਿਹੜੇ 8 न्यूक्लियाई जो बन गए तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि बोथ एंड्स तो 1 न्यूक्लियाई सेंटर वाल ਨੂੰ मूव करन लग जाते हैं। लाइक अगर तुहानू थोड़ा जिहा याद होवे आपां कीता सी दिस इज अ सेल सराउंडिंग बाय अ लेयर This cell is known as primary archisporal cell. Now this primary archisporal cell divides into 2. इहदे सराउंडिंग जिहड़ियां लेयर्स हैं वो तो मल्टीप्लाई हो ही रही हैं। इंटैगूमेंट्स आपां वर्ड पढ़िया सी कि ओव्यूल दी स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ियां सराउंडिंग लेयर्स डिवेलप होंदी हैं इंटैगूमेंट्स जिथों कि पोलन ट्यूब ने पैनीट्रेट करना हुंदा है। दिस इज डिवाइड हो गया आर्चिस्पोरल सेल इनटू पेराइटल सेल एंड नीचे वाला जिहड़ा हैगा दैट इज स्पोरोजीनस सेल। दीज आर द इंटैगूमेंट्स। क्लीयर है। नाउ असीं इंटैगूमेंट्स ड्रॉ नहीं करांगे, वी विल फोकस ओनली ऑन द स्पोरोजीनस सेल। जिहड़ा स्पोरोजीनस सेल ते पेराइटल सेल, जिहड़ा उपर वाला दिस इज पेराइटल सेल एंड जिहड़ा स्पोरोजीनस सेल है वो हैप्लॉइड मैगास्पोर बनांदा है, यानी टेट्राड दी फॉर्म दे विच 4 सैल्स दी फॉर्म दे विच। दीज आर 4 सैल्स। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड मैगास्पोर। तुसीं इहनूं अलग अलग मार्कर नाल अलग अलग कलर नाल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, इस सैल नूं एंड द रेस्ट ऑफ अदर 4 सैल्स। नाउ इनू छड्ड दो, हुण असीं सिर्फ हैप्लॉइड मैगास्पोर क्योंकि यही फंक्शनल है इहदे उत्ते ही फोकस करांगे। इस सैल नूं थोड़ा जिहा इलाज कर लेंदे आ। जिहड़ा इहदा एक सैल है दैट बिकम्स फंक्शनल
megaspore एंड द ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ all the 3 degenerating megaspores 4 बने सी 3 ਡੀਜਨਰੇਟ कर गए एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फर्दर फंक्शनल हो गया ग्रो करन लग गया नाउ ਅਸੀਂ सिर्फ ਇਹਦੇ ਤੇ फोकस करना है this starts elaborating like this ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ साइटोप्लाज्म या जो भी अंदर द डेंस मटीरियल है इट ऑल्सो स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ कि both cells both nuclei move towards the two ends ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव हो गए ये 3 हजे फर्दर डिजनरेट हो रहे हैं ठीक है 2 ends ਤੇ आ गए नेक्स्ट इज more elaborate dense cytoplasm ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੀ one on each end ਇਹ further division होगी 2 on each end 2 ਚ divide हो गए ਇਹ 2 end है दोनों ends ਦੇ अलग अलग नाम है ਤੁਹਾਨੂੰ further ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ now 4 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣ ਗਏ अगेन डिवीजन फर्दर डिवीजन हुई तो 2 किदे डिवाइड हो गए 4 च डिवाइड हो गए यू विल नोटिस ये जड़ा डेंस साइटोप्लाज्म या अदर मटीरियल inside the nucellus. Now these cells are slightly moving towards the center, one from this side and one from this side. Center move कर रहे हैं. It will be very much clear in the next diagram. सेंटर से आगे 2 न्यूक्लियाई इन्होंने सराउंडिंग भी साइटोप्लाज्म है कवर्ड है और जोड़े 3 है वो अपने अपने 2 एंड्स ते पे रह गए क्लियर है दिस ए क्लोज आए फ्यूज होए एंड दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियस इस स्टेज ते असीं इन्हां नूं पोलर न्यूक्लियस का नाम देवांगे फर्दर आफ्टर दैट की हुंदा है देखो किन्ने तरह दी डिविजन्स हो गई एक फंक्शनल मैगास्पोर सी हैप्लॉइड जिहड़ी टैट्राड पोजिशन दे विच सी उहदे चों 3 डिजनरेट हो गए 1 फंक्शनल मैगास्पोर च कन्वर्ट हो गया 1 फंक्शनल मैगास्पोर दा जिहड़ा न्यूक्लियस सी इट डिवाइड्स इंटू 2 और दोनों न्यूक्लियाई जिहड़े आ वो अलग अलग अदर एंड्स ते पहुंच जाते हैं उत्थे जाके अपने अपने एंड ते फिर डिविजन करते हैं डिवाइड होंदे हैं तो 2 च डिवाइड हो जाते हैं 2 तो फर्दर फिर 4 च डिवाइड हो जाते हैं इस तरह नाल ये जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो चल रही है 4 च डिवाइड जदों होए 4 ऑन ईच एंड तो उहदे चों एक एक जिहड़ा न्यूक्लियाई वो मूव स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर उत्थे जाके जिहड़े 2 न्यूक्लियाई 1 फ्रॉम ईच एंड कम्स एट द सेंटर एंड they club with each other fuse with each other and forms the polar nucleus there it is after that complete fusion हो जाएगी तो then we will call them secondary nucleus उत्थे secondary nucleus term like ਆਪਾਂ diagram draw करते हैं This is micropillar end. This is
ਸ਼ੈਲਜ਼ਲੈਂਡ। मैं शैलजा टर्म भी लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। 2 एंड ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਿਊਲ ਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਜ਼ਲੈਂਡ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਸ हैज़ फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लीयर है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਈਚ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। 3 ਐਟ ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ। ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ। ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 cell will be act as an egg and the other 2 as synergids. Now what are synergids? Synergids भी kind of cells हैं। इन्हां दा functioning की है? Absorbs nutrients। nutrients ਨੂੰ absorb ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? From the nucellus। nucellus ਦੇ nutrients ਨੂੰ absorb करते हैं। एंड प्रोटेक्शन, ये जोड़ा सिनर्जिड्स हैं न्यूट्रीएंट्स ਨੂੰ absorb करता है न्यूसैलस तो। एंड मोर ओवर एक सीट, एक पाथवे जनरेट करते हैं, एक रस्ता बनाते हैं फॉर वॉट? ऑटोमैटिकली वैसे होना की है इन द फर्दर, ये सारा प्रोसैस असी क्यों कर रहे हैं कि जदों एम्ब्रियो सैक बन गया, डिवेलप हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, तो उन्हें फर्दर फर्टिलाइजेशन तक पहुँचना। फर्टिलाइजेशन होनी किहदे नाल? पोलन ग्रेन्स दे नाल, जिहड़े कि पोलन ट्यूब दे विचों दी निकल के आने हैं, जो वी हैव ऑलरेडी डन। तो पोलन ट्यूब दे विच जिहड़े उहदी पैनीट्रेशन दे लई उहनूं एक पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं दीज सिनर्जिड्स। साइड बाय साइड न्यूट्रीएंट्स नूं भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सो दैट जिहड़ा एम्ब्रियो सैक है वह वैल नरिश्ड रहे। और रेस्ट ऑफ द जोड़े एंटीपोडल दिस शैलज़लैंड दे विच उपर जोड़े एंटीपोडल सैल्स बनते हैं। शैलज़लैंड दे उपर जोड़े 3 सैल बचे, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सैल्स। दीज एंटीपोडल सैल्स फर्दर डिजनरेट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ आई होप कि तुहानू पूरा प्रोसेस समझ आ गया होएगा। इन केस तुहानू कोई टर्म नहीं समझ आती तो दैन यू कैन कमेंट मी कि ए वाला जिहड़ी सानू टर्म है वो नहीं क्लीयर हुई, आपां उहनू रिपीट कर सकते हैं इन आवर फर्दर क्लास और नैक्सट वीडियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हुण असी इत्थों तक पहुँच गया कि असी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 प्रोसेस असी वी हैव डन टिल नाउ। वन वॉज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द अदर वॉज मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी कैन ईजीली डिफरेंशिएट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? hurry up, haploid microspores are formed। इधर ਜਿਹੜਾ फर्स्ट क्लीयर कट डिफरेंस है haploid megaspores are formed। माइक्रो मैगा। सेकेंड ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोसेस है किहदे अंदर हुंदा है? इनसाइड पोलन सैक। पोलन सैक्स दे अंदर it occurs inside ovules। ovules the under। clear? Third one is after the process जिहड़ा मैं तुहानू पहले दस्सिया सी क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन्स और पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड। आफ्टर दिस की बनिया सी? embryo sac। here microspores are tetrahedral।
मैगास्पोर्स जिहड़े बने आर लीनियर, पोजिशन है उन्हां दी। क्लीयर? हेयर ऑल द 4 माइक्रोस्पोर असी बनाए सी, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल, चारों दे चारों फंक्शनल सी। बट हेयर असी की किया है कि ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्लियर? Then it occurs inside microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम दे इनसाइड ए होल प्रोसैस हुंदा है। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। होल प्रोसैस अकर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। क्लीयर है जी? आई होप कि आपां इन्नी अच्छी तरह सारा प्रोसैस समझिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस तुहानूं ईजिली समझ आ गया होएगा कि इहदा पर्पज़ है पोलन ग्रेन्स नूं डिवेलप करना, प्रोड्यूस करना। एंड इहदा प्रोसैस की सी एंब्रियो सैक नूं डिवेलप करना, सो दैट पोलनस जिहड़े पैनीट्रेट करन, ओव्यूल नाल फर्टिलाइज करन एंड फरदर न्यू सीड्स विल बी डिवेलप्ड। Now let's proceed। एक साडी बुक दे विच इस तो बाद डिफरेंस हो रहा है, दैट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट। वो भी असी फटाफट उन्होंने भी कर लैंदे आ, चीज़ां होई ने। जस्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है कि सानू टॉपिक दी अपने क्लैरिफिकेशन हो जाएगी अच्छी तरह कि सानू टॉपिक अच्छे तरह नाल समझ आ गया है। मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट दे विच डिफरेंस। एंब्रियो सैक तक असी डिवेलपमेंट कर ली। नाउ मेल गैमीटोफाइट भी बन गया साडा, दैट आर पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमीटोफाइट भी बन गया। It develops from pollen grains and it develops from megaspores। तुसी इहनूं पोलन ग्रेन्स की जगह ते माइक्रोस्पोर्स भी लिख सकते हो। It develops from microspore and the female gametophyte develops from megaspore। Now जिहड़ा मेल गैमीटोफाइट है, it does not lie inside माइक्रोस्पोरेंजियम। ये फरदर माइक्रोस्पोरेंजियम दे विच नहीं रह जाता। पोलन ट्यूब पैनीट्रेट कर जाती है, एलैबोरेट करती है, ग्रो करती है एंड पोलन ग्रेन जिहड़ा उहदे नाल ही अगे नूं आ जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम दे विच इहने सिर्फ डिवेलप होना है और फरदर उत्थे स्टे नहीं करता और फरदर मूव हो जाता है। बट इन दिस केस जिहड़ा फीमेल गैमीटोफाइट है, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइज होने तो बाद आफ्टर दैट उन्हें फिर ग्रो करना, उन्हें डिविजन होनी है, न्यू सीड जनरेट होना है, तो सारा कुछ जिहड़ा है इसीलिए होएगा इफ इट विल बी परमानेंटली स्टे इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ये परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम दे विच लाई करेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾइट ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ
एंड जनरेटिव सैल बने सी। प्री एंड पोस्ट पॉलीनेशन डिवेलपमेंट हुंदी है। इहदे विच सिंगल स्टेज डिवेलपमेंट हुंदी है बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने तो पहले जिन्नी भी डिवेलपमेंट होनी है दी फीमेल गैमीटोफाइट दी हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो फिर नैक्सट प्रोसैस स्टार्ट हो जाता है। इहदे विच 3 सैल्स, 1 vegetative and the 2 were male gametes formed। लेकिन इधर 7 सेल्स बनते हैं। किहड़े किहड़े? 3 एंटीपोडल सैल जिहड़े कित्थे बने सी? शैलज़ल एंड ते। 1 सेंट्रल सैल जिहदा असीं न्यूक्लियस नूं सैकेंडरी न्यूक्लियस कहा सी। 1 एग प्लस उहदे सराउंडिंग 2 की सीगे? सिनर्जेट्स जिन्हां ने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी सी टू द डिवेलपिंग एम्ब्रियो सैक। क्लीयर है जी? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। थोड़ा जिहा स्पीड नाल चलदे हां, आपां अपना टॉपिक कवर करदे हां सो दैट कि असीं रिविजन ते आ सकीए। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगर कोई तुहानूं फटाफट पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक नूं किस तरह नाल डिस्क्राइब करोगे? इट विल बी ओवल, असी ड्रॉ कीती सी, प्लस इट विल बी मल्टी सैलूलर प्लस हैप्लॉयड फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर? एदियां करैक्टरिस्टिक्स हैं। एम्ब्रियो सैक विल बी ओवल, मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमीटोफाइट एंड इट ऑलवेज लाई, आपां डायग्रामेटिकली भी समझा सी कि थोड़ा जिहा इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड जिथे एग अपरेटस पिया सी, it lie towards the micropillar end and 8 nucleus बने सी। 8 nucleate embryo sac will be formed जिहदे 8 न्यूक्लियाई पए सी। अगर आपां इहदी फटाफट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए just to recall the whole process we had done already. This is the Schalzel end, these are the polar nuclei or 2 polar nuclei. Here are micropillar end ते egg and 2 are synergids. These are towards the, this is called micropillar end and this was called as the Schalzel end. And towards the micropillar end, here are some structures.